Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 3 from JNU Environmental Science MSc conducted by NTA in 2019. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. In the NDA JNU MSc level paper is coming with a duration of 180 minutes and 100 marks. It is mandatory all the question to attempt. It has 75 questions out of which 50 questions are having 1 mark and 25 questions are having 2 marks. So the total mark will be 100. Let us discuss some questions. The first question we will discussing here is telling Lincoln index is used to measure. So before we should proceed, you should know what is Lincoln index. Lincoln index simply estimate the animal population density and it is based on the data obtained by the mark recapture technique. So you have seen, आप सबने देखा होगा कि mark recapture technique क्या होता है. The mark recapture technique is used to estimate the size of a population where it is impractical to count the every individual. The basic idea is that you capture a small number of individuals, put a harmless mark on them and release them back in the population. So ये सब चीजें आपने देखे होंगे कि आपको फॉरेस्ट में कुछ मार्किंग्स दिखेगा किसी भी आपके एनिमल्स के ऊपर, तो आप उसको समझ सकते हैं कि उसका मार्क रिकैप्चर टेक्निक के थ्रू से उसकी नंबरिंग की हुई है. तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं यूजिंग लिंकन इंडेक्स. सो यू शुड नो व्हाट इज लिंकन इंडेक्स. The next question asks, the greatest problem of water conservation is to reduce the amount of. So the options are precipitation, runoff, groundwater and evaporation. So you should know the greatest problem of water conservation is to reduce the amount of runoff. क्योंकि अगर आपका एक पानी का सतह है और वहां से आपका पानी बह जा रहा है, instead of percolating, it goes out of that terrain, so it will not store as a groundwater, so water conservation will not be take place. So this is the reason, that is runoff will be reducing the water from a particular area. So that is not the reason for which you can say it leads to water conservation. So this is because clean water flow on the surface of water due to excess rainfall and melting of snow. So these are the two processes that leads to runoff. Number third, you can see the question asks the percentage of forest cover recommended by National Forest Policy 1988. So National Forest Policy 1988 में forest cover का percentage कितना recommend किया गया है, ये है question. So अगर हम जाने तो अगर हम discuss करें, the present forest cover is 20.4% is quite small. Recommended by the forest policy that is 33%. तो 33% जो हमारा फॉरेस्ट कवर था वो आपका प्लेन के लिए था, 33% फॉर द प्लेन अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. इन इट आल्सो रेकमेंड्स 67% फॉरेस्ट कवर इन द हिल. अगर हिल की बात करें तो वहां पे 67% की बात की गई थी, लेकिन प्रेजेंटली डेंस फॉरेस्ट ओनली ऑकर्स 11.78%. सो ये भी बहुत कम है इंडिया के हमारे बेसिस पे. ठीक है, तो आइए जानते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के साइलेंट फीचर्स क्या है. सो इंडियन फॉरेस्ट आर करेंटली गवर्न्ड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. इट हैज एनवायरमेंटल बैलेंस एंड लिवलीहुड एट इट्स सेंटर. साइलेंट फीचर्स की बात अगर करें तो it tends to maintain of environmental stability through preservation and restoration of ecological balance, conservation of natural heritage existing, check the soil erosion and denudation in the catchment area of the rivers, lake and reservoir. तो soil erosion और denudation को चेकिंग करने का भी काम ये कर रहा है, मतलब रोकने का काम ये कर रहा है in the areas of rivers, lakes and reservoir. Checking the extension of sand dunes in the desert area of Rajasthan along the coastal tracks. साथ ही साथ सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट ट्री कवर थ्रू एफोरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री.
के मेथड से फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, ये भी इनका काम है। टेक स्टेप्स टू मीट दी रिक्वायर्ड फ्यूल वुड फॉडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सॉयल टिम्बर ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, ये भी इनका काम है कि इनको प्रोवाइड करना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड, एनकरेजिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ द वुड टिम्बर। तो टिम्बर पे इन्होंने बहुत फोकस किया है इस जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में। जनरेशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट और वर्किंग अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाना इस पॉलिसी का काम है। इसके साथ इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म? इट हैज नॉट बीन अपडेटेड इन लॉन्ग टाइम व्हाइल द सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट हैज सब्सटेंशियली चेंज। तो समय के साथ इन लॉज में भी बदलाव की जरूरत होती है, जो कि बहुत समय तक नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल 2019 में ड्राफ्ट आ चुका है और 2020 में शायद वो पास होने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में हमारा नया ड्राफ्ट आ चुका है। साथ ही साथ बात करें अगर की पॉलिसी रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर आइदर मिसिंग, ये भी हुआ था कि यहाँ पे की पॉलिसीज जो है वो मिसिंग थे, जिसमें कि डिलेड और लेफ्ट ओपन एंडेड था। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दैट इज एक्सेप्टेड नेशनली और स्टेट आर लेफ्ट टू डिटरमाइन देयर डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सो नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट कवर का कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं होता है, आप स्टेट लेवल पे ही उसको डिफाइन करते हैं फॉरेस्ट को। ये भी इस पॉलिसी का कुछ क्रिटिसिज्म था। The next question asks, which one of the following areas in India is a biodiversity hotspot? So इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे हमारे बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज का पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो 4 रीजन्स हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। एक है आपका वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और दूसरा है आपका ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन, और तीसरा है आपका सुंडालैंड जो कि यहाँ पे म्यांमार की तरफ मौजूद है, इंडिया से कुछ पोर्शन कनेक्टेड होते हुए। तो हमारे पास 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है मेनली, हिमालयस, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड इंक्लूडिंग द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। These hotspots have numerous endemic species. Endemic species इनमें बहुत सारे होते हैं। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। Western Ghat will be the our biodiversity hotspot. Next question asks, what does the abbreviation of the GPS stands for? So GPS का abbreviations मतलब उसका full form क्या है? तो आप सबको पता है कि GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। आइए जानते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओरिजिनली एज नवस्टार जीपीएस, ये नवस्टार जीपीएस था जो कि यूएस बेस्ड था, यूएस बेस्ड है। ये is a satellite based radio navigation system owned by the United States government and operated by the United States Space Force। तो उनकी स्पेस फोर्स के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। इट इज वन ऑफ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट दैट प्रोवाइड्स द जियो लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको जियो लोकेशन मतलब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, साथ ही साथ आपको टाइम भी पता चलता है ताकि इन्हें जीपीएस रिसीवर ताकि आप उस जगह को ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर जीपीएस की तो इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि रिलेटिवली वीक जीपीएस सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा उनका कैप्चर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दीज आर द ऑब्स्टेकल्स फॉर द जीपीएस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच फॉर्म ऑफ द स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम डिस्क्राइब करें तो उससे पहले हम इनके ऑप्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मीया स्कैटरिंग की बात करें तो मी स्कैटरिंग में होता क्या है? मी स्कैटरिंग occurs when a diameter of atmosphere particles are similar to the wavelength of the scattered light। तो मी स्कैटरिंग में आपका जो डायमीटर ऑफ द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जहां से वो स्कैटर हो रहा होगा वो सिमिलर होगा आपके वेवलेंथ के बराबर। जैसे कि एग्जांपल डस्ट, पॉलन, स्मोक एंड माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म्स द क्लाउड्स आर कॉमन कॉज ऑफ द मी स्कैटरिंग, ठीक है। अगर हम बात करें रेलिक स्कैटरिंग की तो रेलिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल होता है इन ए मीडियम वो विदाउट द चेंज इन द वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर एग्जांपल द ब्लू कलर ऑफ द स्काई सिंस द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड more efficient than the red one।
ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है वेवलेंथ लाइट से काफी बड़ा होता है, इसलिए ये अच्छे से स्कैटर कर जाता है। बात करते हैं अगर लास्ट वाले की बात करें हम, द लास्ट टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज द नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग। इट ऑकर्स इन ए लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे सिर्फ साइज की बात की है, लार्जर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे वेवलेंथ के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता है, तो दिस कैटेगरी ऑफ हमको जो हमारी स्कैटरिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये हमारा प्राइमरी कॉज होता है हेज फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ए मिनरल कैल्साइट। ये हमारा क्वेश्चन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है फिंगर नेल, स्टील ब्लेड, कॉपर कॉइन एंड ग्लास रॉड। तो अगर हम मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस देखें, ये हमारा मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस से ये क्वेश्चन है, तो मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस को अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए टाल्क जो होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है, फिर थोड़ा हार्ड जिप्सम होता है, फिर कैल्साइट होता है, फिर फ्लोराइट होता है, फिर एपेटाइट होता है, फिर आपका ऑर्थोक्लेज होता है, फिर क्वार्ज होता है, फिर टोपैज होता है, फिर कोरंडम होता है, फिर आपका डायमंड होता है। तो ये सारे आपके मिनरल्स के सीक्वेंस हैं, ये आपके मिनरल के सीक्वेंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक के हार्डनेस की, तो इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर हम बात करें जिप्सम और टाल की, इनको फिंगर नेल से स्क्रैच किया जा सकता है। कैल्साइट की बात करें तो कॉपर पेनी से किया जा सकता है। एपेटाइट तक के सारे नीचे के जितने भी मिनरल हैं इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। ऑर्थोक्लेज के नीचे भी हैं उनको स्टील नेल से किया जाता है, और कोरोंडम के नीचे जितने भी हैं उनको ड्रिल बिट से तोड़ा जा सकता है। तो ये उनके क्राइटेरिया होते हैं कि किन कॉमन ऑब्जेक्ट से उनको तोड़ा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसने पूछा था कि हार्डनेस ऑफ ए कैल्साइट मिनरल को कैसे डिटरमाइन करें, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर पेनी की जगह में हम कॉपर कॉइन की बात कर रहे हैं, तो कॉपर पेनी और कॉपर कॉइन सेम चीज होता है, तो कॉपर कॉइन विल बी योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑर्थोक्लेज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। तो केओलिनाइट, सेल, लाइमस्टोन एंड ऑर्थोक्लेज दिया हुआ है। अगर हम बात करें हमारे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑर्थोक्लेज, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्थोक्लेज अगर हम करेंगे तो ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगर हम उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा केओलिनाइट बना के देता है। तो योर आंसर विल बी केओलिनाइट। केओलिनाइट इज ए टाइप ऑफ ए क्ले मिनरल।